स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप। तो ऑप्शन ए है 5 to 11 अंडर पार्ट 2, 6 to 12 अंडर पार्ट 2, 5 to 11 अंडर पार्ट 3, 6 to 12 अंडर पार्ट 3। तो सिटीजनशिप पार्ट 2 में है अंडर आर्टिकल 5 to 11। The Constitution deals with citizenship from Article 5 to 11 under Part 2. However, it contains neither any permanent nor any elaborate provision in this regard. It only identifies the person who became citizens at its commencement. तो 26 जनवरी 1950 को कौन लोग भारत के सिटीजन हो गए हैं इस बारे में दिया है। बाकी समय समय पर संसद सिटीजनशिप में चेंज करती रहती है, जैसे कि अभी ही कुछ समय पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया हुआ था। स्टेटमेंट 1, अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर जनवरी 26, 1950 बट बिफोर जुलाई 1, 1987 इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। Statement 2, a person born in India on or after July 1, 1987 is considered as citizen of India only if either of the parent is citizen of India at the time of birth। तो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता था तो वो भारत का सिटीजन होता था, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पेरेंट्स। मतलब भले उसके पेरेंट्स किसी और देश के नागरिक हों, पर वो भारत का सिटीजन होता था। लेकिन 1 जुलाई 1987 को इसे चेंज कर दिया गया और इसमें कंडीशन डाली गई, इफ़ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, मतलब कम से कम पेरेंट्स में से कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जो इंडिया का सिटीजन हो। और 2004 में इसे और बदला गया और ये जोड़ा गया कि उनमें से कोई भी पेरेंट इलीगल माइग्रेंट ना हो। तो स्टेटमेंट 2 में इलीगल माइग्रेंट का कहीं जिक्र नहीं है, इसीलिए ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। A person born in India on or after July 1, 1987 is considered as citizen of India only if either of his parents is a citizen of India at the time of his birth. A person born in India on or after December 3, 2004 are considered as citizen of India only if both of their parents are citizen of India or either of parent is a citizen of India and the other is not an illegal migrant। मतलब illegal migrant नहीं होना चाहिए दूसरा parent। What is the meaning of a person of Indian origin if he or either of his parents was born in undivided India or such other territory which became a part of India after August 15, 1947, if he or either of his parents or either of his grandparents born in undivided India, the territory which became part of India after the August 15, 1947, both are true, none of the above। तो इसका सही आंसर है ए, इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, न कि ग्रैंड पेरेंट्स। तो a person is considered to be a person of Indian origin if he or either of his parents was born in undivided India or such other territory which became a part of India after August 15, 1947। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1, बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बिफोर December 10, 1992 he is a citizen of India by descent if either of his parents is citizen of India at the time of his birth। Statement 2, a person born outside India on or after December 10, 1992 is considered as a citizen of India if either of his parents is a citizen of India at the time of birth। तो स्टेटमेंट 2 ट्रू है और 1 फॉल्स है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक आइदर ऑफ पेरेंट्स की कंडीशन नहीं थी। फादर शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये नेसेसरी कंडीशन थी, जिसे 10 दिसंबर 1992 में बदल दिया गया और आइदर ऑफ पेरेंट्स किया गया। फ्रॉम 26 जनवरी 1950 टू दिसंबर 10, 1992 अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली इफ हिज फादर वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। But after December 10, 1992, a person born outside of India, a citizen of India, if either of his parents is a citizen of India at the time of his birth। From December 3, 2004 से इसमें रजिस्ट्रेशन इंडियन कॉन्सुलेट में 1 साल के अंदर करना जरूरी कर दिया गया।
अगला क्वेश्चन है ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन फॉर इंडियन ओरिजिन टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ सिटीजन। अगर कोई इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति हो तो उसके लिए 7 साल इंडिया में रहना जरूरी है। A person of Indian origin can make an application for registration as a citizen of India if he is ordinarily resident in India for 7 years। और अगर वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है पिछले 5 सालों से, तो पिछले 1 साल से लगातार उसे इंडिया में ऑर्डिनरीली रेसिडेंट मतलब सामान्यतः रहना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन हु इज मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करता है जो इंडिया का सिटीजन है तो उसे 7 साल का समय इन्हें भी लगता है इंडिया की सिटीजनशिप लेने पे। ए पर्सन हु इज मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ऑर्डिनरीली लिविंग इन इंडिया फॉर 7 years कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अगला हमारा क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स डुअल सिटीजनशिप और डुअल नेशनैलिटी। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। अगर आप किसी और देश की सिटीजनशिप लेते हैं तो यहाँ की आपकी सिटीजनशिप रद्द हो जाएगी। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 9। अंडर आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स डुअल सिटीजनशिप और डुअल नेशनैलिटी। Under which article freedom of movement and residence is subjected to the protection of interest of any scheduled tribe। तो scheduled tribes को कुछ प्रोटेक्शन दी गई है अंडर आर्टिकल 19। क्यों दी गई है? क्योंकि टू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्ट कल्चर लैंग्वेज एंड कस्टम्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस इज सब्जेक्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब अंडर आर्टिकल 19। तो दोस्तों हमारा वीडियो आज का यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।